विशिष्ट रूप से जैसे बेसिकली इसमें श्री माता जी ने लेफ्ट साइड की बात की। ये बताया कि फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश योर डिजायर एंड देन अचीव इट। पहले आप अपनी डिजायर को एस्टैब्लिश कीजिए और उसके बाद स्थापित कीजिए, उसके बाद फिर प्राप्त करिए। तो उसके लिए हम अपने राइट हैंड को जमीन पर रखेंगे। और इस स्पीच वैसे ही अंग्रेजी भाषा में है, तो इसकी चिंता मत करिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। आप सिर्फ श्री माता जी की तरफ देखिए, जो कुछ लगेगा तो हम किसी से भी इसको ट्रांसलेट करवाएंगे हिंदी में। और मुझे लगता है कि सब एक एक शब्द, जिनको अंग्रेजी अच्छी आती है, जो भी कोई याद रहता है, एक दो लाइन सब लोग बोले कि श्री माता जी ने इसमें क्या क्या बताया, लेकिन रिपीट ना करें। जैसे एक ने बता दिया है तो दूसरा व्यक्ति दूसरी बात बताया इसी स्पीच में। तो जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत है उनको भी ये बात लेक्चर समझ में आएगा। इस स्पीच पे भी हम लोगों ने काफी मेडिटेशन में वर्क कर पाया है। इसको बहुत बेसिक और अच्छा स्पीच है। श्री माता जी बताती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कैसे उसमें स्टैब्लिश होना है, आप उन लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। तो बहुत सारी बहुत बेसिक और अच्छी बातें से बताई। इसलिए सभी लोग बहुत अटेंटिव होकर सुनिए, कोई ध्यान करने का प्रयास मत करिए। इसे अपने राइट हैंड को जमीन पर रखिए और सुनते समय अपना पूरा अटेंशन अपनी लेफ्ट साइड पर रखिए। आप देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड और आगे बहुत काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत पकड़ी हुई अवस्था है हम सबकी। तो कहीं ना कहीं उस पर लगातार काम होने से वो चीज छूटेगी। तो जिनको अंग्रेजी आती है अच्छे से उसको सुने और इसको हिंदी में जो भी खड़े होके 2 या 3 लाइन श्री माता जी ने इसमें क्या बताया, ताकि जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है वो एटलीस्ट उसको सुन सकें कि इसमें क्या बताया। सभी लोग आ गए हैं, जो लोग नहीं आए वो अंदर आ जाइए। So welcome to you all, Sahayogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves, that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires.
Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing you. So you expand it more, then you start thinking, Mother, what about the problem of our country? Alright, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself. The desire that you have, you leave it. And once you have purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there is no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention?
I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete. Then your responsibility to this Sahaja Yoga. What is your responsibility to Sahaja Yoga? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. You have to do the work of God, and you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahaja Yogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to Sahaja Yoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height. Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. Thus, today we have to start this puja on Mahakali Day. And is the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though according to the scheduled time it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great Sahaja Yogis, desire to be responsible Sahaja Yogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts, and I'll definitely settle down there. May God bless you for today's puja. I hope all of you will take it in such a way
that the subtlest of subtle will be awakened within you, the sensitivity every way, and the love which culminates into joy. Love that flowers into the fragrance of joy will manifest in today's puja. May God bless you. श्री महाकाली के 108 नाम। राइट हैंड जमीन पे रहने दीजिए। ओम श्री महाकाल्ये नमो नमः। ओम कामधेनवे नमो नमः। ओम कामस्वरूपायै नमो नमः। ओम वरदायै नमो नमः। ओम जगदानन्दकारिण्यै नमो नमः। ओम जगज्जीवमय्यै नमो नमः। ओम वज्रकङ्काल्यै नमो नमः। ओम शान्तायै नमो नमः। ओम सुधासिन्धुनिवासिन्यै नमो नमः। ओम निद्रायै नमो नमः। ओम तमस्यै नमो नमः। ओम नन्दिन्यै नमो नमः। ओम सर्वानन्दस्वरूपिण्यै नमो नमः। ओम परमानन्दरूपायै नमो नमः। ओम स्तुत्यायै नमो नमः। ओम पद्मालयायै नमो नमः। ओम सदा पूज्यायै नमो नमः। ओम सर्वप्रियङ्कर्यै नमो नमः। ओम सर्वमङ्गलायै नमो नमः। ओम पूर्णायै नमो नमः। ओम विलासिन्यै नमो नमः। ओम अमोघायै नमो नमः। ओम भोगवत्यै नमो नमः। ओम सुखदायै नमो नमः। ओम निष्कामायै नमो नमः। ओम मधुकैटभहन्त्यै नमो नमः। ओम महिषासुरघातिन्यै नमो नमः। ओम रक्तबीजविनाशिन्यै नमो नमः। ओम नरकान्तकायै नमो नमः। ओम उग्रचण्डेश्वर्यै नमो नमः। ओम क्रोधिन्यै नमो नमः। ओम उग्रप्रभायै नमो नमः। ओम चामुण्डायै नमो नमः। ओम खड्गपालिन्यै नमो नमः। ओम भास्करासुर्यै नमो नमः। ओम शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ओम रणपण्डितायै नमो नमः। ओम रक्तदन्तिकायै नमो नमः। ओम रक्तप्रियायै नमो नमः। ओम कपालिन्यै नमो नमः। ओम कुरुकुलविरोधिन्यै नमो नमः। ओम कृष्णदेहायै नमो नमः। ओम नरकुण्डल्यै नमो नमः। ओम गलद्रुधिरभूषणायै नमो नमः। ओम प्रेतनृत्यपरायणायै नमो नमः। ओम लोलजिह्वायै नमो नमः। ओम कुण्डलिन्यै नमो नमः। ओम नागकन्यायै नमो नमः। ओम पतिव्रतायै नमो नमः। ओम शिवसंगिन्यै नमो नमः। ओम विसंगिन्यै नमो नमः। ओम भूतपतिप्रियायै नमो नमः। ओम प्रेतभूमिकृतालयायै नमो नमः। ओम दैत्येन्द्रमथिन्यै नमो नमः। ओम चन्द्रस्वरूपिण्यै नमो नमः। ओम प्रसन्नपद्मवदनायै नमो नमः।
ॐ स्मेरवक्त्रायै नमो नमः। ॐ सुलोचनायै नमो नमः। ॐ सुदन्त्यै नमो नमः। ॐ सिन्दूरारुणमस्तकायै नमो नमः। ॐ सुकेश्यै नमो नमः। ॐ स्मितहास्यायै नमो नमः। ॐ महत्कुचायै नमो नमः। ॐ प्रियभाषिण्यै नमो नमः। ॐ सुभाषिण्यै नमो नमः। ॐ मुक्तकेश्यै नमो नमः। ॐ चन्द्रकोटिसमप्रभायै नमो नमः। ॐ अगाधरूपिण्यै नमो नमः। ॐ मनोहरायै नमो नमः। ॐ मनोरमायै नमो नमः। ॐ वश्यायै नमो नमः। ॐ सर्वसौन्दर्यनिलयायै नमो नमः। ॐ रक्तायै नमो नमः। ॐ स्वयंभुकुसुमप्राणायै नमो नमः। ॐ स्वयंभुकुसुमोन्मदायै नमो नमः। ॐ शुक्रपूज्यायै नमो नमः। ॐ शुक्रस्थायै नमो नमः। ॐ शुक्रात्मिकायै नमो नमः। ॐ शुक्रनिन्दकनाशिन्यै नमो नमः। ॐ निशुम्भशुम्भसंहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ वह्निमण्डलमध्यस्थायै नमो नमः। ॐ वीरजनन्यै नमो नमः। ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमो नमः। ॐ कराल्यै नमो नमः। ॐ पाशिन्यै नमो नमः। ॐ घोररूपायै नमो नमः। ॐ घोरदंष्ट्रायै नमो नमः। ॐ चण्ड्यै नमो नमः। ॐ सुमत्यै नमो नमः। ॐ पुण्यदायै नमो नमः। ॐ तपस्विन्यै नमो नमः। ॐ क्षमायै नमो नमः। ॐ तरङ्गिण्यै नमो नमः। ॐ शुद्धायै नमो नमः। ॐ सर्वेश्वर्यै नमो नमः। ॐ गरिष्ठायै नमो नमः। ॐ जयशालिन्यै नमो नमः। ॐ चिन्तामण्यै नमो नमः। ॐ अद्वैतभोगिन्यै नमो नमः। ॐ योगेश्वर्यै नमो नमः। ॐ भोगधारिण्यै नमो नमः। ॐ भक्तभावितायै नमो नमः। ॐ साधकानन्दसन्तोषायै नमो नमः। ॐ भक्तवत्सलायै नमो नमः। ॐ भक्तानन्दमय्यै नमो नमः। ॐ भक्तशङ्कर्यै नमो नमः। ॐ भक्तिसंयुक्तायै नमो नमः। ॐ निष्कलङ्कायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आंखें खुली रखिए, श्री माता जी को देखिए। अपना राइट हैंड को जमीन पर रहने दीजिए अभी। कुछ लोगों को हो सकता है झपकी आ रही हो, चिंता मत करिए, आने दीजिए उसे, इसलिए मैं यहाँ के बैठा हूँ। राइट हैंड जमीन पे रहने दीजिए।
लेफ्ट साइड की जो कैचेस होते हैं ना बहुत सूक्ष्म होते हैं और बहुत समय के जमे हुए रहते हैं। जैसे हम रोज ध्यान करते हैं, अभी राइट हैंड जमीन पर रहने दीजिएगा। तो जैसे हम रोज ध्यान करते हैं तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जैसे ध्यान में बैठते हैं थोड़ी देर बाद वो झपकी लेने लग जाते हैं। तो नींद ध्यान में दो प्रकार की होती है, एक ओकेजनली होती है और एक आती रहती है। मतलब जब भी व्यक्ति बैठेगा उसको नींद आएगी आएगी, भले उसकी पूरी नींद क्यों ना होगी। और किसी किसी को बहुत कभी कभी आती है। तो जिनको कभी कभी आती है वो होती है राइट साइड की पकड़। मतलब व्यक्ति बहुत थका हुआ है, उसकी नींद नहीं है, तो ध्यान में जो बैठता है तो कुंडलिनी उसको रिलैक्स करती है, उसको नींद आ जाती है। जिनको बार बार नींद आती है वो लेफ्ट साइड का ब्लॉकेज है। अब वो होता तैयार कैसे होता है हमारे अंदर? हम लोग ध्यान में बैठते हैं और एक अवेयरनेस से बाहर चले जाते हैं, तो उसका पीरियड बढ़ता जाता है। फिर जैसे तैसे करके हम आते हैं और ध्यान खत्म होता है। अब मान लीजिए हमने 45 मिनट का मेडिटेशन किया और 45 मिनट के मेडिटेशन में हमने समथिंग 25 मिनट्स या 20 मिनट्स हम अवेयरनेस से बाहर रहे, तो वो जो अवेयरनेस से बाहर रहने की स्टेट है वो क्या होगी? अब मान लीजिए उसको ऐसा करते करते किसी सहयोगी को साल 2 साल 3 साल कई साल लग जाए, तो वो इतनी जड़ हो जाती है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे वो ठीक ही नहीं होती, वो निकलती ही नहीं। इतने सारे लोग भवन कर लेते हैं और इसी आतुर रहते हैं। मैंने देखा सहयोगी को जब हवन का, अच्छा हवन है कब है? अभी अपन बोलेंगे ध्यान है तो बोले हाँ अच्छा ठीक है आ जाएंगे। अच्छा हवन है तो मतलब वो हवन और इसको लेकर वो इतने वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। हमें लगता है कि भाई कितने सालों से हवन अटेंड किया है अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हो रहा है ना व्यक्ति का। लेफ्ट साइड एक चीज से क्लियर होती है, वो होती है जो श्रीमाता के साथ शुद्ध इच्छा। फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योर डिजायर एंड देन अचीव इट। क्या बोला श्रीमाता जी ने? फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस योर डिजायर एंड देन अचीव इट। पहले आप अपने डिजायर को एक्सप्रेस करिए, फिर आप प्राप्त करिए। हम अपने डिजायर को एक्सप्रेस नहीं करते, और अगर डिजायर को एक्सप्रेस करना मतलब प्योर डिजायर की बात करनी है, अशुद्ध इच्छा की बात नहीं करनी, शुद्ध इच्छा की। तो हम एक्सप्रेस करते हैं डिजायर को बार बार, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी लेफ्ट साइड को ठीक करने में। जिसकी शुद्ध इच्छा शुद्ध हो जाती है ना, उसकी लेफ्ट कभी नहीं पकड़ती, उसकी लेफ्ट पकड़ती ही नहीं। किसी बाहरी प्रभाव से उसको कुछ कैचेस आ सकते हैं लेकिन वो जल्दी छूट जाता है। तीसरा वो व्यक्ति होता है जो किसी गुरु के चक्कर से निकल के सहयोग में आया है, या उसमें कुछ गुरु की पकड़ है, उसको नींद बुलाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो गुरु का एलिमेंट, जो डिस्टर्ब एलिमेंट है, वो उसको सुला देता है, वो उस चेतना में जाने नहीं देता है। जिनके अंदर थोड़ी बाधाओं की समस्या होती है, तो होता था ना कि भाई श्री माता जी आती थी तो सब आगे आके बैठ जाते हैं, माँ को देखेंगे और 1-2 घंटे तक माँ नहीं आती थी, आप तो जैसे माँ थी तो माँ सामने बैठी थी। अब कितना भी आगे खोले जा रहे थे कि नींद ही नींद आ रही जा रही। जब माँ के जाने का टाइम आता तब माँ परेश जाता है, और जब तक माँ बैठी तब तक झपकी लिए जा रहे, लिए जा रहे, और उसके पहले 2 घंटे तक बिल्कुल ऑर्डर ठोके बैठे कि माँ आने वाली है, और जैसे ही माँ आए तो ये वो वाली समस्या होती है। तो ये हमारे अंदर लेफ्ट साइड की इस तरह से सूक्ष्म पकड़ होती है, इसलिए लेफ्ट साइड पे हम थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि तो ये बहुत सारी चीजों को हमारे अंदर लेता है, छुपी हुई रहती है, दिखाई नहीं देती है, जिसको हम इल्यूजन कहते हैं। मतलब जो चीज जैसी है वैसी दिखाई ना देना, ये लेफ्ट साइड की पकड़। मतलब मिथ्या को सत्य मान लेना, ये लेफ्ट साइड की पकड़। और राइट साइड की पकड़ जो मुझे समझ में आया है, तो क्या होती है इसी लैंग्वेज में, कि जो चीज जैसी वैसी दिखाई दे रही है फिर भी उसको स्वीकार न करना, ये अहंकार, राइट साइड की पकड़। आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सच है, फिर भी अहंकार उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये राइट साइड की पकड़। तो एक तरफ भ्रम है और एक तरफ अहंकार है। तो ये जो लेफ्ट साइड की अभी महसूस करते रहिए, आप महसूस करिए, राइट हैंड जमीन पर रहने दीजिए। तो ये सारा जो तत्व है, श्री माता से कई दिमाग में बहुत सारे तत्वों से घिरा हुआ है, ये अपने आप को एक्सपोज करिए श्री माता जी से, उजागर करिए। श्री माता जी बहुत सारे ऐसे तत्व घुसे हुए हैं, और इसी लेफ्ट साइड की पकड़ से हमें जो चीज समझाई जाती है हमें समझ ही नहीं आती।
कई लोग जब मुझसे प्रश्न करते हैं तो मुझे समझ में आता है बाप रे क्या बात कर रहे हैं, और मैं 2 दिन से 3 दिन से 8 घंटे लगातार बोल रहा हूँ तो ये क्या प्रश्न कर रहा है। यही लेफ्ट साइड की पकड़, क्योंकि विजडम हमारे अंदर लेफ्ट साइड से आती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर क्या आती है, जिज्ञासा आती है, ये होती है जिज्ञासा। और ये राइट साइड से क्या आती है, नम्रता। तो जिज्ञासा और नम्रता ये 2 तत्व जब बैलेंस होते हैं, अगर मान लीजिए आपने जिज्ञासा बहुत है सत्य को पाने की, लेकिन नम्रता नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। कई लोग होते ना कि पाना चाहते हैं लेकिन वो अपने ही गो में रहते हैं तो भी नहीं मिलेगा। तो किसी में नम्रता बहुत है कि वो बहुत नम्र है, सब कुछ सुन लेगा, लेकिन जिज्ञासा नहीं उसके अंदर उस तत्व तो भी नहीं मिलेगा। तो ये होगी जिज्ञासा लेफ्ट साइड, और ये होगी नम्रता। तो जिज्ञासा और नम्रता दोनों का समान रूप से हमारे अंदर संतुलन होना चाहिए। दूसरा, यहां से आती है श्रद्धा और यहां से आती है सबूरी। साईं बाबा कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी। परमात्मा के प्रति श्रद्धा हमारे अंदर लेफ्ट साइड से आती है, हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं उनके प्रति। और सबूरी मतलब धैर्य, जो हो रहा है ठीक है। तो लेफ्ट साइड से आती है खुद की इच्छा, हमारी खुद की क्या इच्छा है, और राइट साइड में परमात्मा की इच्छा। जो हमारी इच्छा है वो हम उसको व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में हम परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करते हैं। जैसे कल कोई घटनाक्रम हुआ अपना, वो ले गिरे, तो राइट साइड में आपको देखना परमात्मा आपकी जो इच्छा है वो स्वीकार है, तो उनकी इच्छा को स्वीकार। अब मान लीजिए आपको वाइब्रेशन आपके हिसाब से नहीं आ रहा तो भी आप उसको स्वीकार करें, तो आपका राइट बढ़ेगा नहीं, आप रिएक्शंस में फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे नहीं। ये चीज होती है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना, थोड़ा दिन के प्रभाव से हम बाहर आए है ना। आवाज आ रही है, आवाज आ रही सबको। तो ये हमें बेसिकली समझना, बहुत सरल चीज है, हम बहुत सरल चीज पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें श्री माता जी से अपने अंदर जिज्ञासा रखनी है कि हमें उसको प्राप्त करना है। और राइट साइड में नम्रता भी होती है, उस नम्रता में रह करके उसमें एक पोलाइटनेस हमारे अंदर, एक हम्बलनेस आपके अंदर आनी चाहिए, एक ह्यूमिलिटी आनी चाहिए कि मुझे इसको प्राप्त करना है। तब ये दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित होने लग जाता है। अभी श्री माता जी ने कुछ बताया था, हाथ को बोल के रख लीजिए। कोई बताना चाहेगा? 1 लाइन 2 लाइन हिंदी में। थोड़ा गेप हो गया, हो सकता है भूल गया सब। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट बात इसमें थी कि आपकी सिर्फ ड्यूटी है कि आपको स्पिरिट को पाना है, और रेस्ट इज माई हेडेक, बाकी का सब मेरा हेडेक है, मेरा सर दर्द है। आपको तो सिर्फ आत्मा को प्राप्त होना है। बोल हाँ बताइए ना, खड़े थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, पंखी की आवाज सुनिए। आप सहज नहीं, मतलब आप सादे सुधे आदमी नहीं है। आपका चयन गॉड से किया गया, गॉड द्वारा आप लोगों का चयन किया गया है, इसलिए आप साधारण नहीं। ये बात है। उधर करके मुंह बोलिए कि आप साधारण लोग नहीं है, आप साधारण लोग नहीं। जाने पाएगा। आपको भगवान गॉड द्वारा, परमात्मा द्वारा आपको चुना गया। ये इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा लोग बाहर आ जाए, समझ रहे हो ना, दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता है। आगे आ जाइए, ठीक है। जय श्री माता जी। माता जी कह रही है हमें कि आप जो सहयोगी हो वो साधारण लोग नहीं है, आपका चयन साक्षात परमात्मा द्वारा किया गया है। तो आपके ऊपर ये तो एक विश्व है, एक विश्व में हम सब लोग जन्म लिए हैं। इस तरह के कितने सारे विश्व आपके चरणों पर
अर्पण करके तो भी कम है, इतने आप महान हैं। ऐसा माता जी कह रही है, हमारी महिमा बढ़ा रही है। थैंक यू माता जी। जय श्री राम। एक बात वो कहती है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए आपका बहुत मूल्य है। इफ यू वांट टू अचीव दैट हाइट, यदि आप उस हाइट को पाना चाहते हैं तो तभी आपका मूल्य है। तो ये बहुत सारी इसमें छोटी छोटी बेसिक बात है। आप अपने बच्चे को, परिवार को, इन सबको लेकर बैठोगे तो नहीं होने वाला है, जिसकी हम कल से बातें करें। जय श्री माता जी। श्री माता जी इसमें कहते हैं कि अपने उत्तरदायित्व को समझिए, मेरे प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको समझिए, सहयोग के प्रति उत्तरदायित्व है उसको समझिए, और जो सिस्टम है, जो सिस्टम बना है हमारा, जो सूक्ष्म शरीर का, उसके प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझिए, तो आप जो है उस प्योरिटी को अपने आप में पा पाइएगा। बिल्कुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आपको मुझे जानना है हर दिन, और ज्यादा बेहतर और बेहतर और बेहतर। तो प्रतिदिन आपको मुझे जानना है, जितना आप बेहतर तरीके से अपने आप को जान सकते हैं। माँ कहते हैं कि आपको सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि आपको जो 90 गॉड एलिमेंट्स है, परमात्मा विरोधी जो तत्व है, उनको समझना है और उनके विरोध में उनको खत्म करने के लिए कार्य करना है। जय श्री माता जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मुझे इसके बहुत अच्छे अनुभव आए। इसमें एक बात श्री माता जी बोलती है जो मैं मतलब मुझे जब भी निराशा आती है या कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो मुझे हमेशा बहुत हेल्प करती है। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि हमें कोई भी डिजायर जब हमारी पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने एक बात बोली है कि यू हैव टू do only one desire, that is to be a spirit. Rest everything is my headache. मतलब आपको केवल एक ही इच्छा करनी है कि मुझे आत्मा बनना है, इसके अलावा जो भी इच्छाएं हैं वो सब मेरा हेडेक है। तो जब भी मुझे निराशा आती है, मैं देखता हूँ कि मैं ये सब इच्छाएं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम केवल शुद्ध इच्छा करना है, बाकी सब माता जी पे छोड़ देना है। और एक चीज और इसमें माने बोली है जो बहुत हेल्प करती है कि नॉर्मली हम माँ से मांगते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात श्री माता जी बोलती है कि व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कलेक्टिव। मतलब एक्चुअली आपका एटीट्यूड होना क्या चाहिए। अभी तक हम क्या बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये पाना है, हमें ये करना है। लेकिन इसमें माँ बोलती है कि योर डिजायर शुड बी ऑन टू द कलेक्टिव, कि व्हाट कैन आई गिव, हाउ कैन आई गिव, एंड व्हाट इज माय मिस्टेक इन गिविंग। मतलब हम दुनिया को क्या दे सकते हैं और क्या कमी है हमारे अंदर कि हम नहीं दे पा रहे। तो ये चीज मुझे हमेशा हेल्प करती है कि हम सब रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअली श्री माता जी ने हमें मतलब हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं। तो जब हमारा एटीट्यूड देने का हो जाएगा तो फिर ये छोटी छोटी चीजें हमें तो प्रभावित नहीं करेंगी। यस बिल्कुल। देखिए, एक मिनट है ना। हाँ देखिए, इसी स्पीच में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको हम बाद में कवर करते हैं। हाँ बता दें। बिल्कुल रिलैक्स होके बोलिए, आराम से। पास में माइक, पास में माइक। हाँ, जय श्री माता जी। इस लेक्चर में एक सबने नोटिस किया कि मुझे पता नहीं, हमेशा लेक्चर की शुरुआत में होती है कि आई गो टू ट्रू सीकर्स, और ये लेक्चर में श्री माता जी ने बोला है कि सहज योगी
और बाद में सहज योगियों की डेफिनेशन बताइए कि सहज योगी कैसा होना चाहिए, जो यूजलेस वाले हुए, जो सिर्फ मांगते रहते हैं और डिजायर, इम्प्योर डिजायर और मटेरियलिज्म में अटके हुए हैं, वो सहज योगी नहीं है। इसीलिए वो लेक्चर की शुरुआत में ही उन्होंने सहज योगियों को बोला है। हमेशा वो ट्रू सीकर्स के बारे में बोलती है और एम में समर्पण के बारे में बोलते वक्त श्री माता जी ने कहा है कि आप मुझे समर्पित हो जाओ, मतलब मेरे आपके हृदय में माँ के प्रति अति प्रेम होना चाहिए और वही समर्पण है, और आप मुझे हृदय में बुलाए, मेरे हृदय में आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही। देखिए इसमें शायद जैसे बड़ा स्पीच है ये, लेकिन शायद इसमें पहले बताया कि नहीं बताया इस लेक्चर में, उसमें एक बहुत अच्छी बात है। उसमें कहती है श्री माता जी, कुंडलिनी हैविंग ओनली वन डिजायर टू बी अ स्पिरिट, एनीथिंग एल्स इफ यू डिजायर कुंडलिनी डजंट राइज। कुंडलिनी की केवल एक ही इच्छा है कि उसको आत्मा स्वरूप होना है। अगर इसके अलावा आप कोई भी इच्छा करेंगे वो उठेगी नहीं। मतलब आप कोई भी इच्छा करो, अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, श्री माता जी मुझे तकलीफ है, तो कुंडली उठेगी, सिर्फ शुद्ध इच्छा से ही उठेगी। अब हम शुद्ध इच्छा क्यों करते हैं, इसको हमें समझना है। हमें जो जन्म मिला है, हमारी कुंडली जो स्टोर है उसके हिसाब से मिला है, उसी की पूर्ति के लिए मिला है। पिछले जन्मों में हमने कोई अशुद्ध इच्छा की होगी तो उसकी पूर्ति के लिए फिर एक जन्म मिलता है, क्योंकि कुंडली रिकॉर्डर की तरह होती है, इसमें हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाती हैं, सारी इच्छाएं रिकॉर्ड होती जाती हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लग जाती हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, उसमें रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो अगला कर्म, जैसे होता है हम कर्म से फिर प्रारब्ध बनते हैं, वो बनना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ शुद्ध इच्छा की है। तो कुंडली क्योंकि शुद्ध इच्छा है तो आप शुद्ध इच्छा करते हैं, तो अगर इस जन्म में वो चीजें प्राप्त नहीं भी हो पाएंगी तो अगले जन्म से आपको बिल्कुल एक अपग्रेडेड स्टेट में दिया जाएगा, जहां से आप सीधे उसको प्राप्त करेंगे, आपके भटकाव नहीं रहेंगे। क्योंकि आप, हो सकता है किसी कोई व्यक्ति अशुद्ध इच्छा करके मर गया और उस अशुद्ध इच्छा और उस अटैचमेंट के कारण फिर से उसको वही जन्म मिला, तो उसके कारण उसके जन्म चलते रहते। तो यही बात है। हम एक अभी तो क्या नहीं देख पाएंगे, रात में कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे इसी जन्म मरण की चक्कर वाली बातों को कि वो कैसे घटित होती है। तो उसमें यही चीज होती है कि एक उसमें एक प्रकरण बताया गया, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि एक राजा की 3 पत्नियां रहती हैं। तो उस राजा को कोई संतान नहीं होती, तो राजा बड़ा दुखी रहता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो मेरा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक दिन नारद मुनि उनके घर पे आते हैं, तो नारद मुनि से वो विनती करते हैं, थोड़ा निराश दिखते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि भाई क्या समस्या है। तो कहते हैं सर सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन एक पुत्र नहीं है वंश को चलाने वाला। तो इच्छा व्यक्त करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो ठीक है। तो नारद मुनि उसकी इच्छाएं देखते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग एक हवन करेंगे और हवन के बाद उसका जो प्रसाद है आपकी एक रानी को हम देंगे और उस रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी आपको, जो आपके हर्ष और विषाद का कारण बनेगा। हर्ष मतलब प्रसन्नता, विषाद मतलब निराशा। ठीक है। अब उसको लगता है, वो बोल तो जाते हैं, चले जाते हैं। अब उसको ये बात खाती रहती है, यार हर्ष तो ठीक है, ये विषाद का कारण बनेगा मतलब क्या है। तो ठीक है चलो पुत्र तो हो रहा है। तो हवन होता है और 3 रानियों में से एक रानी को बिठा दिया जाता है। अब एक रानी को जब बिठा देते हैं, उसको प्रसाद देते हैं और कुछ समय बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है कि राजा का मोह उस बच्चे से होने लग जाता है। तो राजा जो है ज्यादा समय या तो रानी के साथ में और उस बच्चे के साथ में रहता है। तो बाकी जो 2 रानियां रहती है उसको जेलसी फीलिंग होती है, देखो अब तो राजा हमको देखता तक नहीं है, जब से बच्चा आ गया है ना, और वो इनकी रानी के साथ में रहता है। तो दोनों रानियां बहुत कुड़ती रहती हैं कि देखो पहले तो हमारे साथ बहुत समय बिताया करते थे, आजकल तो हमें देखते ही नहीं। तो वो क्या किया जाए, बोले एक काम करते हैं, उस बच्चे को मार डालते हैं जिसके कारण ये राजा हमसे दूर हो रहा है। तो वो रानियां क्या करती, दोनों षड्यंत्र करके उस बच्चे को विष दे देती, जहर दे देती और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो राजा को खबर आती है, राजा बहुत
पागल सा हो जाता है और बच्चे की डेड बॉडी देखता है और बहुत भयंकर दुख और पीड़ा में चला जाता है। और ऐसे ही बैठा रहता है वो। नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि राजन धैर्य रखो और अपना चित्त अपनी आत्मा में लगाओ। आप क्या आत्मा की बात कर रहे हैं? मेरा कोई चित्त आत्मा में नहीं जा रहा। और आपने तो बोला था कि मेरे हर्ष विषाद का कारण बनेगा। जब मेरे हर्ष विषाद का कारण बनेगा तो आपने मुझे दिया क्यों? बोले राजन मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुमने इच्छा करी, तुमने इच्छा करी थी इसीलिए तुम्हें ये चीज प्राप्त हुई। मतलब जो आप इच्छा करते हैं फिर उसके दुख के लिए भी तैयार है ना। तो सोचिए हमने कितनी सारी इच्छाएं की, हमें कार भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो ये तो दुख देंगी, ये देंगे क्या? फिर हम उसके लिए तैयार तो नहीं रहते। कार का कांच भी टूटेगा, हेडलाइट भी टूटेगी, पंक्चर भी होगी, पैसा भी लगेगा अलग से, तो दुख तो होगा। मोबाइल खरीदा है वो भी टूट जाएगा तो भी दुख होगा। क्योंकि जिन जिन चीजों की हमने इच्छा की है वो विषाद का कारण तो बनेगी तो नहीं। कितनी सटीक बात बताइए। फिर क्या होता है, उसका विषाद जो होता है वो कमी नहीं होता जाकर। बोले नहीं, बोले आप ही जो आत्मा की बात कर रहे हो, कभी जैसे सहयोगी के साथ होता है, कभी किसी घर में डेथ हो जाती है, आप बोले नहीं अपने चित्त को आत्मा में, अरे क्या आत्मा की यार अभी तो मैं दुखी हूँ, उसका नहीं जाता है। मेरे घर वाला चले गया, ये चला गया, क्या तुम आत्मा की बात कर रहे हो? वो तो यही बोलता है ना। तो राजा को समझ ही नहीं आता है। नारद मुनि इसको समझाते हैं कि बेटा देखो तुम अपने चित्त को अपनी आत्मा में रखो, शांत हो। बोले मुझे शांति नहीं मिल रही। बोले ठीक है, तेरे को शांति नहीं मिल रही, मैं तेरे बच्चे को वापस बुलाता हूँ और उसी से पूछ लेता हूँ वो तेरे साथ रहना चाहता कि नहीं रहना चाहता। ये चला गया। तो उनके पास जो दिव्य शक्ति रहती है तो वो बच्चे की आत्मा को बुलाते हैं और आप उस बच्चे जो बच्चा मर गया उसकी आत्मा को बुलाते हैं, पूछते हैं देखो तुम्हारा पिता रो रहा है, तुम वापस आ जाओ। बोले मेरा कौन सा पिता? मेरे तो कई पिता हो गए, आप ही बताओ मेरा असली पिता कौन? इसके पहले मेरे 5 पिता और हो गए, तो मेरा असली पिता कौन है? देखो उसको पहचानता नहीं है वापस। बोले मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। ये रियलिटी होती है, ये डिजायर वाली बात हो, शुद्ध इच्छा होती। इसलिए बार बार सिर्फ अब देखिए होता क्या है, कई लोग बोलते हैं कि अगर शुद्ध इच्छा ना हो तो क्या करें? तो मांगिए, बार बार मांगिए। अशुद्ध इच्छाएं हम पर हावी तो होगी, संसारिक इच्छाएं हावी तो होगी। बाहर स्टॉल लगा तो जाते से खरीदने की इच्छा होगी, ठीक है ना। मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, जो नहीं भी चाहिए वो भी लेके आते हैं। जिसने मॉल का कॉन्सेप्ट बनाया ना वो जबरदस्त बनाया कि पैसा जेब में से अपने आप निकलता है बाहर। आप किराने की दुकान में जाओगे तो एक पैसा बचा के रहोगे, उससे भावताव करोगे। और मॉल में क्या होता है, अपने आप पैसा बाहर निकलता है, क्योंकि आपकी आंखें चौंधी आ जाती है सारी चीजों को देखते हैं। तो जो चीज नहीं भी चाहिए रहती है, आपके हस्बैंड आपको 1000 रुपए देते हैं और आप 2000 का सामान खरीद के ले आते हैं। तो श्री माता जी एक लेक्चर में कहती हैं इसके बारे में कि अमेरिकन आर मनोवेटिंग, मतलब दे आर मेड आफ्टर देयर माइंड, है ना। मतलब वो दिमाग के पीछे पागल है। तो बोले एक ने उसकी वाइफ को पैसे दिए उसकी शर्ट खरीदने के लिए, तो वो शर्ट खरीद के लिए, वो स्कर्ट खरीद के लिए। तो बोले क्या? बोले मेरा मन किया तो मैं स्कर्ट खरीद के लिए। उसने उसको पैसे दिए थे कि मेरा शर्ट खरीद के लाना, तो वो अपने लिए खुद के लिए स्कर्ट खरीद के लिए। तो बोले ये मन के पीछे पागल लोग हैं, जैसा मन कहता है उसके पीछे पागल। तो आदि शंकराचार्य ने इसके बारे में विवेक चूड़ामणि में बताया कि हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, पंचकोश है, नवा पंचकोश है, बोलते ना आत्माष्टकम में कहते हैं ना, नवा पंचकोश है। मैं 5 कोश भी नहीं हूं। अन्नमय कोश मतलब जो आदमी अन्न के बारे में सोचता है, अब क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, अभी क्या मिलेगा, हमें तो तीखा पसंद है, हमें तो मीठा पसंद है। उसका चित्त अन्न में घूमता रहता है, उस कोश में घूमता रहता है। उसके ऊपर प्राणमय कोश, वो अपने प्राणों की चिंता करता रहता है, कैसे सर्वाइवल करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे।
अपने आप को कैसे समाज में रख पाएंगे, कैसे क्या होगा। फिर आता है मनोमय कोश। मन का होता है, श्रीमती बोलती ना, आज्ञा और विशुद्धि के बीच में, तो ये मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब कि जैसे मैंने बताया कि मन के पीछे पागल रहते हैं, जो मन करता है वही करते हैं, मतलब मन के विपरीत जा ही नहीं पाते हैं। तो जो मन कहता है उसी के पीछे रहते हैं। उसको लगता है कि उसके पास उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मन कह रहा है कि ले लो एक बार, तो वो भी ले लेता है। तो जो मन कहता है वैसा वो करने लग जाता है, तो वो मनोमय कोश में घूमता है। फिर आता है विज्ञानमय कोश, जहां पर हम क्या करते हैं, ज्ञान मान सब इकट्ठा करते हैं सारा, कैसे हुआ, क्या हुआ, जैसे माँ ने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या कहा, उसमें ये कैसे करते हैं, ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं दूसरों को बताने के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए। वो होता है विज्ञानमय कोश, ठीक है। फिर यहाँ होता है आनंदमय कोश, जहाँ पर वो शांति, संतुलन, समाधान इसका अनुभव करते हैं। अब आदि शंकराचार्य को बोलते हैं कि ये भी आत्मा नहीं, आत्मा इससे परे है। तो फिर जैसे मेरे अंदर प्रश्न आता है कि आनंदमय कुछ, तो सही बात है, तो होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये भी प्रकृति का विकार है। मतलब कैसे, कि जैसे हम बोलते हैं कि मुझे आनंद आया, शिवास उसको आनंद आया, या कोई भी हो, तो अभी वो जो मैं है ना, वो जीवित है। आनंद तो है, लेकिन उसमें मैं नाम की जो संस्था है वो जीवित है, इसीलिए वो आत्मा का स्वरूप नहीं, वो द्वैत स्थिति है। तो जब ये मैं समाप्त हो जाता है, तब केवल आनंद शेष रह जाता है। समझ में आ रहा है? कोई कठिन तो नहीं है। किसी को कठिन लग रहा है तो खड़े के बोल देना, तो ये समझ में नहीं आ रहा, और हो सकेगा तो वो सरल करके बताएंगे, लेकिन वैसे बहुत सरल ही है बात, और इसको ज्यादा समझने की प्रयास भी मत करिए, इसलिए आपको बता रहे नींद उड़ाने के लिए आती है। तो ये जो 5 कोश हैं, उसमें वो मनुष्य घूमता रहता है। अब इससे अपना आकलन करिए कि हम किस कोश में रहते हैं। देखिए मैं किस कोश में रहता हूँ, तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई किसी के कोश में रहते ही है। तो ये एक स्थिति है हम सबकी, और ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन बात है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, उसको कठिन मत मानिए, ये सरल बात है, लेकिन हम उसको सरल तरीके से ग्रहण नहीं कर रहे, इसीलिए ये कठिन बनते जा रही है, हम कठिनाई में चले जाते हैं पूरी तरह से। देखिए महसूस करिए, दोनों हाथ आराम से खोलिए, बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के बैठिए। अपना चित्त अपने आत्मा पे रखिए, हृदय में रखिए। और हृदय में रखकर कहिए कि मां मैं केवल आत्मा हूं। बस कृपया करके ध्यान मत लगाइए, नहीं तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रहिए, बजाय उसको करने के, लगाने के, उसमें रहिए। राइट हैंड को हार्ट पे रखिए, पूरे विश्वास से कहिए और अपनी कुंडलिनी माँ को सुनाइए इस बात को, माँ मैं आत्मा हूँ। मैं मतलब कौन? हम जो कह रहे हैं वो बुद्धि से कह रहे हैं। तो ये जो मैं नाम की संस्था है वो हमारी बुद्धि में बैठी है, जो आइडेंटिफिकेशन के रूप में, किसी पहचान के रूप में, जो बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ। वो ये है कि बुद्धि को हम समझा रहे हैं कि तुम ये बुद्धि नहीं हो, ऐसा बोल करके।
भगवान शिव को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कृपया आप हमारे अंदर जागृत हो। अपना पूरा दूसरे हृदय में रखिए।
Shiva
हाथ को सामने ले लें। अपनी आंखों को खोलिए धीरे धीरे।
और अपने आंतरिक स्वरूप को महसूस करिए। जय श्री माता जी। पानी वानी पी लीजिए। भगवान भोलेनाथ को चित्त रखना बहुत कठिन बात है। जितने शुद्ध मन से हम उसको चित्त रखते हैं उतना गहरा असर आता है। हो सकता है कुछ लोगों को इसका असर कम महसूस हो, कुछ लोगों को बहुत गहरे असर महसूस हो। कम ज़्यादा चलता रहेगा, उसकी चिंता मत करिए। अपनी अपनी इच्छा और अपनी अपनी ध्यान करने की अप्रोच की जो पहुँच है उसके हिसाब से हमें मिलता है। किस तरह से हम किसी चीज़ को लेते हैं, कुछ किसी इसको भजन के रूप में लेगा, कोई किस रूप में लेगा, कोई म्यूजिक के रूप में लेगा। ये वो सब चीज़ नहीं है। एक अवस्था के बाद आपको ये सब भजन म्यूजिक समझ नहीं आएगा, सीधे वो पेनिट्रेट करेगा जो तत्व है। देखिए सिर के ऊपर फील करिए। अब इसमें बहुत सूक्ष्म बात है, ऐसा क्यों करा जा रहा है बार बार? इसमें बहुत सूक्ष्म बात पकड़िए। जब हम ऐसा करते हैं तब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, है ना? जैसे आप देखिए, महसूस करिए, जो चैतन्य फील हो रहा है और आप जब नहीं करते हो तो क्या करते हो? आप किसी पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट करने लग जाते हो, तो उससे ही आज्ञा पकड़ लो। तो हमें क्या करना है? सहस्त्रार की जो चेतना है जो बह रही है ऊपर, उस पर एक ही पूरा जो स्वरूप है, निराकार स्वरूप परमात्मा के सिर के ऊपर घूम रहा है वलयाकार में, उसको महसूस करो। तो ब्रह्मांड भी है ना, वो वलयाकार में, और चेतना का मूवमेंट ऊपर किसी तरह से वलयाकार में होता है। लेकिन इमेजिन मत करिए उसे। आपको अगर वलयाकार बोल दिया तो फिर आप वैसे ही आंखें घूम रही होंगी। अब वो तो रहेंगे नहीं कि आंखें घूमे जा रही है। हाँ ये है इसलिए नहीं बताया जाता है सब बातें, इसलिए आपने बिंदु बिंदु वलय की बात ही बताई जाती है। इसलिए यहाँ सिर्फ चैतन्य को महसूस करिए, बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो होता है। तो फ्लो को महसूस करिए और आनंदित रहिए। तो सिर पे नहीं होता तो लोग निराश हो जाते हैं, इसलिए इसको महसूस करते हैं। परमात्मा का निराकार स्वरूप है, घूम रहा है। हाथ सामने कर दीजिए, अब उसे महसूस करते हो। खुली आंखें रखिए, देखिए, कुछ नहीं, रिलैक्स रहिए, लेकिन उसमें बने रहिए उस तत्व में। तो हमने आज बहुत सारी चीजें कवर अप की। अब इतनी सारी होती हैं तो दिमाग में बहुत कम बैठती हैं, तो उसकी भी चिंता मत करिए। जितनी आ गई है उतनी इस सेमिनार के लिए हमारे लिए उपयुक्त है। मैं इसको सेमिनार नहीं मानता हूँ, मैं इसको
जैसे बोलते हैं कि अंतर्दर्शन का पाठ मानते हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये एक अंतर्दर्शन है। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ सिखाने का हूँ, हम सब अंतर्दर्शन कर रहे हैं मिल करके। कोई सिखाने वाला इसमें नहीं है कि हम कोई ज्ञानी है तो हम आपको ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सब उस अंतर्दर्शन के माध्यम से सत्य को ढूंढने का, उसको अनुभव करने का, उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो बराबर एक ठीक से हमें सूझबूझ रखना है। आज जब तक मुझे लगता है हमारा लास्ट ही सेशन है, कल सभी लोगों का जाने का प्रोग्राम है। कल सुबह हम लोग श्री माता जी जिस शेड में रुकी थी उसी के बाहर जो बरामदा है वहीं बैठेंगे सुबह के मेडिटेशन के बाद। जैसे आज वहाँ गए और यहाँ से जाने के बाद ये हम बोलिए कि हम भैया का सेशन अटेंड करके आए या हम भैया का ध्यान करते हैं, तो लोग तो भ्रमित होंगे ना, बोले किसी भैया के चक्कर में फंस गए। हमारी शब्दावली बहुत मतलब होता है ना कि अज्ञानतावश कुछ ही बोल जाते हैं और उसी से सारे जैसे होता है ना कि भ्रम फैलने शुरू हो जाते हैं। हम श्री माता जी का ध्यान करते हैं और उन्हीं से प्राप्त करते हैं बस, बिल्कुल। और उसी के लिए हम गए। कोई व्यक्ति विशेष वाली इसमें कोई बात नहीं है। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम सब ने अपने अपने आप में इंडिविजुअली फील किया है। हम सिर्फ बात सुन रहे हैं लेकिन हमारा सारा चित्त अंदर की तरफ, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कोई घंटों खड़े होकर यहाँ बोलता सबका आज्ञा पकड़ जाता है, लोग उठ के भाग जाते, चाय पी जाते हैं। तो अगर ये दिमाग की बात होती तो हमारा भी आज्ञा पकड़ जाता, पर हम यहाँ बैठ ही नहीं पाते। तो ये बात तो तय है कि दिमाग की बात नहीं, क्योंकि दिमाग आपको कितनी देर बैठा सकता है? आधा घंटा, मुश्किल से ज़्यादा, मुश्किल से 1 घंटा। वो भी अगर आप कोई चीज़ करो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करो तो इन बिना विकल्पों की सहायता के जब हम इतनी देर बैठ पा रहे हैं, इसका मीनिंग यही कि हमारे कहीं ना कहीं आत्मा पर उसके गहरे असर जा रहे हैं, चीज़ें हमारे अंदर तक उतर रही है, हमारा चित्त अंदर की तरफ जा रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने पास 3 दिन रहते हैं ना, तो बहुत कम टाइम रहता है। कि आज कल कई लोग चले जाएंगे, पहले तो हम लोग श्री माता जी का एक लेक्चर है अंग्रेजी भाषा का 1984 गुरु पूजा, सभी ने सुना होगा। विचार शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य की बात उसमें बताई गई, लेकिन उसमें उस लेक्चर में कुछ ऐसी बात श्री माता जी ने कह दी है कि बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो एक एक लाइन बस मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें श्री माता कहती है, व्हेन यू पुट इन एन एफर्ट You stand against becoming। आप जरा सा भी कोई प्रयास करते हैं तो आप जो होने वाली चीज है उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। जैसे जरा सा भी आपने एफर्ट लगाया है तो जो आपके अंदर होने वाला है उसके आप अगेंस्ट में, विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात होता है इसमें। जैसे आपने एक एफर्ट लगाया जरा सा भी, अब एफर्ट लगाने का मतलब क्या है? आप बोलेंगे भैया तो क्या बैलेंसिंग नहीं करेंगे, भैया क्या चक्कर क्लियर नहीं करेंगे? तो वो सब करना है। करने के बाद जैसे आपने यहाँ हाथ रखा, आपने मंत्र लिया, प्रार्थना की, अब एक बार हो गया ना, 5 बार बात तो नहीं रखोगे। एक बार आपने कर लिया, जितना हो गया ठीक है, अब उसको फिर छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना मतलब कुछ करके कुछ नहीं करना। लोग इसका मीनिंग नहीं समझ पाए अभी तक, एफर्टलेसनेस का मीनिंग नहीं समझते लोग।
कुछ करके कुछ नहीं करना, नहीं तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं। मेरी तो इच्छा ही नहीं होती बंधन लेने की, मैं तो ऐसे नहीं होता। वो कभी कभी होता है, कभी कभी हमारी स्थिति अंदर से इतनी शांत होती है कि हमें कुछ लेने की करने की जरूरत नहीं होती, तो बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा एक जैसी चीज अप्लाई नहीं कर सकते हम, नहीं तो हम लेफ्ट में चले जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा। मैं बॉम्बे के एक सेंटर पे गया था, तो वहाँ पर बड़ा पॉश सेंटर था, एसी वेसी लगे, तो ठंडे वाइब्रेशन का तो कोई इशू ही नहीं। ऐसी लगा तो ठंडे वाइब्रेशन की बात, सबको ठंडे ही आएंगे बिल्कुल। तो वहाँ पर एक सज्जन सहयोगी आते थे, और वो जैसे आते थे तो आते से सो जाते थे। इस बात से उनकी कलेक्टिविटी उनके परिचित थी, भली मानती कि वो आते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और सो जाते हैं, और जब ध्यान खत्म होता है तो उठ जाते हैं, घर चले जाते हैं। इससे उनको कोई एतराज नहीं है, ना उसका उनके कोई प्रश्न है। मैंने उनसे पूछा आपके कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं है, कोई नहीं, बढ़िया है। तो मैंने बोला जब वो खुद उससे संतुष्ट है तो कोई बात ही नहीं है। और वो कहते हैं उनका बहुत अच्छा ध्यान रखता है। सबकी पूरी कलेक्टिविटी जानती है कि वो आते हैं, सो जाते हैं, और जब आरती हो जाती है फिर घर चले जाते हैं, और उससे उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति कई लोगों की होती है, जो लोग आते हैं, सोते हैं और उससे संतुष्ट रहते हैं। उनको लगता है वो बड़े गहरे ध्यान में चले गए। यहाँ कहती है माता जी, सो टू बी दैट इफ यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट, दैट मीन्स यू आर नॉट दैट, यू आर ट्राइंग, यू आर आर्टिफिशियल। आप अभी भी एक कृत्रिम है, अगर आप जैसे एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब अभी आप है नहीं उस जगह पर। सो द फर्स्ट स्टेज इज ऑफ श्री गणेशा, पहली स्थिति है श्री गणेश की, जिसमें बताती नॉट टू आर्ग्यू इट आउट, कोई आर्ग्यू नहीं चलेगा। नॉट टू रिएक्ट, एक्सेप्टेंस, एब्जॉर्प्शन, लाइक अ चाइल्ड एब्जॉर्ब द मिल्क ऑफ द मदर विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट रीजनिंग। तो पहली स्थिति गणेश जी की है, जिसमें क्या होता है कि वो कोई आर्ग्यू नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता है, और कंप्लीट एक्सेप्टेंस रहता है, और एब्जॉर्ब करता है। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, उसको पूरी तरह से आत्मसात करता है, उसी तरह से कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको शुरू दिन से यही तो बताया जा रहा है। मत आर्ग्यू करिए, कोई प्रश्न मत करिए, आप सिर्फ एब्जॉर्ब करिए, उसको आत्मसात करिए, उसको ग्रहण कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। कहती है द वे यू कीप मी, जैसे भी आप मुझे रखें, आई एम हैप्पी इन दैट स्टेट। आप जैसे ही मुझे रखती हैं मैं खुश हूँ। तो अभी हम कह रहे हैं ना कि हमारी स्थिति जैसी भी खुश रही। सो द वे यू कीप मी, आई एम हैप्पी इन दैट स्टेट, एंड टू सजेस्ट योरसेल्फ दैट आई एम द पीस, सजेस्ट ऑटो सजेशन, आई एम द सेटिस्फैक्शन एंड द डिग्निटी। Try to impose this artificiality upon yourself of these virtues and righteousness, and then ask yourself, भले ही आप इसको आर्टिफिशियल तरीके से बोलिए अपने ऊपर, लेकिन बोलिए, ये वर्क करेगा।
क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो कई लोग, हम लोग कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ भैया, ये कोई मेंटल बोल रहे हैं हम, तो बोलिए ना। बचपन से हम क्या बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, अब ये बोलना शुरू करिए मैं आत्मा हूँ। अगर 25, 30, 35 या 40, 50 साल तक हम मैं शरीर हूँ बोलते आए हैं, हमें ये सिखाया गया कि आप शरीर हैं, तो शरीर तो बढ़ेगा, वो हमारी आइडेंटिटी बनेगा। अब हम उल्टी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ। बोलते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी चेतना इस बात को स्वीकार कर लेगी कि रियली आई एम द स्पिरिट, हम वास्तव में आत्मा ही हैं। इसलिए मां कहती है ट्राई टू इम्पोज दिस आर्टिफिशियलिटीज अपॉन योरसेल्फ। भले आप आर्टिफिशियल तरीके से कह रहे हैं कि अपने आप को इम्पोज कीजिए, अपने ऊपर डालिए। क्या डालिए कि आई एम द सेटिस्फेक्शन,